السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تاتینا، آتی ہمارے پاس، آیا آیت، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل، مانند، قولہم، ان کی بات کے، تشابہت، ایک جیسے ہوگے، قلوبہم، ان کے دل، قد تحقیق، بین الآیات، بیان کی ہم نے آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا، وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اور نہ آپ سوال کیے جائیں گے، ان اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کل یہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے طریقے کی یا ان کے دین کی، قل، کہہ دیجئے، ان، بے شک، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر پیروی کریں آپ، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس چیز کے بعد، جاءک، آئی آپ کے پاس، من العلم، علم سے، مالا کا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔
یعنی اللہ سے بچانے کے لیے پھر آپ کے پاس نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ آج کا سبق ہے, تو کل کا سبق کون سنائے گا؟ دو آیتیں تھیں, ایک 116 اور ایک 100, بلکہ نہیں 117 نمبر آیت, تین آیتیں تھیں جی, 115 116 اور 117, تین آیتیں جی. محمد افنان, ٹھیک ہے, سنائے محمد افنان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب, فَأَيْنَمَا, پھر جس طرف بھی, تولو, تم رخ کرو گے, فَثَمَّ, تو وہاں ہی ہے, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, ان اللہ وسیع علیم, ان بے شک اللہ وسیع, بڑی وسعت والا, ساتھ بڑی وسعت والا, علیہم, خوب جاننے والا ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا, ٹھیک ہے, اپنا افنان ایک آیت آپ کی. کل سفیان کو بولا تھا, آج وہ غائب ہی ہو گیا, آیا نہیں. یہاں یوزر نیم کوئی چینج ہے. آیا ہے, اس نے اپنا لاگ ان نہیں کیا ہوا. صحیح, تو سنائیں جی محمد سفیان, آپ سنائیں. اینا سفیان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اتخذ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ وقال اتخذ اللہ ولدا. اور کہا انہوں نے, پکڑ لیا اللہ نے, اور کہا انہوں نے, سبحان اللہ, وہ پاک ہے, وقال اتخذ اللہ, اور کہا انہوں نے, پکڑ لیا اللہ نے, ولدا, اولاد کو, اولاد کو, سبحانہ, سبحانہ, وہ پاک ہے, اس سے, اس سے, واللہ, واللہ, بل لہو, واللہ, بلکہ اس کے لیے ہے, ماں, بلکہ اس کے لیے ہے, ماں فی السماوات والارض, جو کچھ زمین, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, جی, کل کل اللہ, لہو, کل اللہ, سب اسی کے لیے, قانتون, عاجز ہونے والا ہے, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, سب اسی کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. جی, جزاک اللہ خیر, آئندہ بھی کوشش کریں, اور کوشش کر کر کے انشاءاللہ بالکل سیٹنگ ہو جائے گی. تو اب جو ہے ہم چینج کرتے ہیں جی, مکان, گھر, فیملی چینج کرتے ہیں جی. کوئی اور اس کے علاوہ؟ جی, آخری آیت تک کون اس کے علاوہ؟ چلیں پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
बदी समावाती इब्तदाई तौर पर पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज और जमीन को। फाइजा और जब कजा फैसला करता है अमरन किसी काम का, फाइन्नमा तो बेशक यकूलु वो कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ये ना एक दो बातें हैं थोड़ी सी, वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना आज का और कल का सबक देखते हैं। कुछ बातें होती हैं साथ साथ जो हो जानी चाहिए तो अच्छी बात है, बाद में एक याद भी नहीं रहता तो फिर बंदा भूल जाता है। अभी सुफियान भाई ने सबक पढ़ा था, तो सबक पढ़ते हुए उन्होंने शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, उसके बाद उन्होंने सबक शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो घर से किसी ने टोका और दोबारा उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद जो है वो सबक सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है थोड़ी सी मैं वो बता देता हूँ, उसको ज़हन नशीन भी कर लें, और छोड़ देने से फिर ये होता है कि बाद में याद नहीं रहता। बात कुछ इस तरह के ताऊज़ जिसको कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कुरान मजीद से पहले, कुरान की तिलावत करने से पहले फर्ज है। ठीक है, तो ये करनी ही करनी है। तो एक चीज ये, इसके बगैर जो है कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, बिस्मिल्लाह पढ़ लें ठीक है, नहीं पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जिस जगह के ऊपर लिखी हुई है उस जगह के ऊपर आप पढ़ेंगे उसको। ठीक है, और जिस जगह के ऊपर नहीं लिखी हुई एहसन है पढ़ लें, नहीं पढ़ें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन तिलावत का आगाज करते हुए, शुरू करते हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना फर्ज है। ठीक है, तो ये नहीं छोड़ना। दूसरी ये चीज है, बदीउ का तर्जुमा कल मैंने किया था जी के अनोखा पैदा करना। ठीक है, तो आज जो है फायजा उस्मान ने सबक सुनाते हुए बदीउ का तर्जुमा किया जी इब्तदाई पैदा करना। अच्छा, इसका जो तर्जुमा हम देखते हैं ना लुगत के अंदर, जो हम मसलन कामूसुल वहीद के अंदर देखते हैं या किसी और के अंदर देखते हैं लुगत के अंदर, तो लुगत के अंदर इसका तर्जुमा होता है कि इजाद करने वाला। और इजाद जो होती है वो चीज तभी इजाद होती है जब पहले से मौजूद नहीं होती, और इब्तदाई पैदा करने वाले का भी यही मतलब है कि पहले से मौजूद नहीं है। लेकिन जो मैंने अनोखे का तर्जुमा कल किया ना, अनोखे का तर्जुमा थोड़ा सा उसको बताया भी, उसको ज़हन में रख लें। हम बदी का तर्जुमा ये इब्तदाई करेंगे और डिफरेंट जगह पे करते रहेंगे। इस जगह के ऊपर अनोखे का इसलिए किया कि इसमें ऐसी चीज थी जिसके आइडिया का भी तस्वुर नहीं था। ठीक है, एक चीज होती है जिसके कोई आइडिया का थोड़ा सा पता चल जाता है, उसके लिए भी बदी होगा कि इब्तदाई तौर पे पैदा हो गई चीज। ठीक है, एक चीज है जो पहले से मौजूद है उसकी नो चेंज करके दोबारा से एक नई नस्ल बन गई, वो भी बदी होगा, क्योंकि वो नई नस्ल की भी जो है इब्तदाई हुई है उधर से जो पहली बनी है। उसके बाद फिर उसके वर्जन आएंगे, 2021 है, 22 है, 2023 है, 2024 है, 2025 है। ठीक है, यानी आइडिया मौजूद था लेकिन चीज दोबारा से बनी इब्तदाई तौर पे। तो बदी का तर्जमा इसीलिए वो अनोखा किया कि वो ऐसी चीज जिसकी ना कोई मिसाल पहले से मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, तो उसको जरा इसमें वो ज़हन नशीन कर लें ताकि आइंदा जो है इस जगह के ऊपर तर्जमा उसका किया जा सके। कल वाले सबक को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम आज वाले सबक की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं। वलिल्लाहिल मशरिक, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। फाइनमा, पस जहां कहीं, तुवल्लू मुंह फेर लो तुम, फसम्मा, पस उसी जगह, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, वासिउन खूब वस्तु वाला, अलीम खूब इल्म वाला है। यानी कि इस आयत में बयान किया गया कि अल्लाह की मजदू से जब रोका जाए तो अल्लाह की मजदू में जैसे हम क्या करते, पिछले साल हमारे साथ प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें कोरोना वबा की वजह से जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त, जी ठीक है कोशिश करें
بالکل इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हर जगह पे नहीं, वो पक्का है बिल्कुल, जो आपकी जुबान के ऊपर पक्का हो गया ना वो ठीक है, लेकिन हर जगह पे ये कुलिया नहीं है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि पिछले साल हमने देखा लॉकडाउन के अंदर मसाजिद को बंद कर दिया गया। तो मसाजिद को बंद करने का मतलब है एक बंदा घर में अपने नमाज अदा ही नहीं करता था, वो मस्जिद में अदा करता था, उसने घर नया बनाया था, या वो किसी जगह के ऊपर मेहमान जाता है जाके उधर मस्जिदों में नमाज अदा करता है। जब मेहमान गया उसके लिए वो घर नया है, पुराना नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक अंदाजे से वो कह लेता है, उसको पता है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ या फलां सिटी में मौजूद हूँ और उस सिटी का जो है किबला वो इस डायरेक्शन में बनता है, वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करके जो है वो अपनी नमाज अपनी इबादत कर सकता है। लेकिन अगर वो भी उसको नहीं पता, वो फिर भी किसी वक्त ज़हन में किसी डायरेक्शन को रख के कर लेगा, नमाज पढ़ लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी, ऐसी मसले वाली बात नहीं है। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और कहा उन्होंने पकड़ लिया अल्लाह ने किसको, औलाद को। यानी अब जिन लोगों ने पहले तो अल्लाह की मस्जिदों से रोका था, मस्जिदों से रोकने के बाद उन्होंने एक और जुल्म ये किया कि अल्लाह ताला के ऊपर एक इल्जाम रख दिया, एक शिरकिया कायद अपना बयान कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि अल्लाह ने नाउज़ बिल्लाह औलाद बना ली है अपनी। ठीक है, तो साथ ही अल्लाह ने इसी आयत के टुकड़ा में कह दिया सुब्हानहू, वो पाक है इस चीज से। यानी जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली, अल्लाह ताला इससे पाक है। मसलन जैसे यहूदियों ने जो है वो बोला था कि अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद बना लिया, और औलाद जो होती है वो एक नस्ल का हिस्सा होती है, एक जिन्स का हिस्सा होती है, वालिद की आगे निशानी होती है, वालदा की रिप्रेजेंटेटर होती है। तो उन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कह दिया। इसी तरह ईसाइयों ने जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कह दिया। इसी तरह मुशरिकीन अरब ने अल्लाह की बेटियां फरिश्तों को करार दे दिया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानहू, पाक है वो। अगर आज के माशरे के अंदर हम देखें तो आज के माशरे के अंदर भी कुछ तबके ऐसे मौजूद हैं जो ये कह देते हैं कि नाउज़ बिल्लाह फलां बंदा या फलां रसूल या फलां शख्सियत अल्लाह के नूर में से नूर है, यानी अल्लाह के नूर का हिस्सा है। यानी वो क्या चीज करते हैं, तसलसल को जोड़ देते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सुब्हानहू, पाक है अल्लाह उस चीज के, ये जो कहते हैं ना इन चीजों से अल्लाह ताला पाक है। बल्लहू, बल्कि उसी के लिए है, मा फिस समावाती, जो बीच आसमानों के है, वल अर्जी, और जमीन के है। यानी जो कुछ आसमानों और जमीनों में है वो उसी के लिए है। जैसा कि आपको पता है जब कोई सिलसिला बन जाता है ना तो सिलसिले में एक ही बंदा उसका मालिक नहीं रहता, उसमें सांझी बन जाता है, उसमें शरीक बन जाते हैं, उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। एक अगर आप छोटी सी मिसाल एक गिराने की लें ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई किसी का हिस्सेदार बन जाता है, कोई भी किसी का सांझी बन जाता है, तो अकेला उसका मालिक नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने इस आयत में क्या बोला, बल्कि बल्लहू, बल्कि उसी के लिए है, मा फिस समावाती, जो आसमानों के है, वल अर्जी, और जमीन के है। अगर हम एक अपने छोटे से मिसाल घर की लें ना, तो घर में एक कार खड़ी होती है, एक बाइक खड़ी होती है, कोई भी चीज गैराज में खड़ी होती है। वो 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बेटियां हैं, मियाँ बीवी हैं, वालिद हैं, वालदा हैं। वो कोई भी आता है ना, वो आके यही कहता है ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी बाइक है, ये फलां चीज हमारी है, यानी वो अपनी तरफ उसकी निस्बत कर रहा होता है। तो वो हकीकत में चीज भी ऐसी है कि वो उनकी सबकी मुश्तरका सांझी, सबकी इकट्ठी गाड़ी होती है, इकट्ठी बाइक होती है, वो सारी चीजें सबकी होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है। अल्लाह ताला ने बोला बल्लहू, बल्कि उसी के लिए है, मा फिस समावात, जो भी आसमानों के है, वल अर्जी, और जो भी जमीन के अंदर है। अब आसमानों और जमीन के अंदर महलूकात भी मौजूद हैं सारी, कुल्लुल्लाहू, सब के सब उसी के लिए कानितून, आइजी इख्तियार करने वाले हैं।
बदी उस समावाती पैदा किया आसमानों को वल अर्ज़ी और जमीन को, अनोखा पैदा किया आसमानों को और जमीन को। वैज़ा और जब कज़ा फैसला करता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा बस सिवाय इसके नहीं, यकूल वो कहता है लाहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकून बस वो हो जाता है। अच्छा जी, आज के सबक को हम देखते हैं। आज के सबक के अंदर जो है ना, मुशरिकीन अरब ने एक बात बोली, कुफारे अरब ने एक बात बोली कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एतराज उठाया कि अल्लाह ताला हमसे क्यों कलाम नहीं करता, अल्लाह ताला हमारे पास अल्लाह ताला की आयत क्यों नहीं आती। ये उन्होंने एतराज किया कुफारे अरब ने, मुशरिकीन अरब ने। वो मुकाबला करते थे अपना यहूदो नसारा के साथ कि इनके पास तो वही का इल्म है, तो हमारे पास वही का इल्म नहीं है। वक़ाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना नहीं इल्म रखते। ये पीछे वाली आयत में भी हम देख चुके हैं, अल्लाह ताला ने ये आयत नंबर 113 के अंदर भी उन्हें क्या फरमाया, कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यालमूना मिस्ला क़ौलिहिम, यानी इस जगह के ऊपर भी अल्लाह ताला ने बोला कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, ये भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आज वाली आयत में भी वही चीज दोबारा दोहराई गई, वक़ाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना नहीं इल्म रखते। यानी ये बात हो रही है मुशरिकीन मक्का की, मुशरिकीन अरब की, कुफारे अरब की। क्यों? क्योंकि उनके पास तौरात भी नहीं थी, इंजील भी नहीं थी, अल्लाह की वही वाला दीन नहीं था उनके पास, तो इसीलिए उनको वही के इल्म के बगैर अल्लाह ने ला यालमून के साथ बोला। वलौला क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाहु कलाम करता हमसे अल्लाह। अब उन्होंने क्या बोला, पहली बात उन्होंने बोली कि क्यों नहीं अल्लाह हमसे बात करता, जैसा कि बात अल्लाह ताला करते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से की, तो वो कहते जी क्यों नहीं हमसे बात करते। औ या तीना आती हमारे पास, या कोई निशानी, कोई आयत। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, मसलन इनसे पहले यहूदो नसारा थे, इसी बात को जो ये बात इन्होंने अब की ना, लौला युकल्लिमुनल्लाहु क्यों नहीं कलाम करता उनसे अल्लाह, तो यही बात उन्होंने जो है वो पहले लोगों ने भी की थी, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इनके उलमा कोई तूर के ऊपर गए थे ताकि अल्लाह ताला के साथ बातचीत को सुन सकें, जिधर इन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम तो अल्लाह ताला को ज़ाहिरी आंख से देखना चाहते हैं। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, मिस्ला क़ौलिहिम इसी तरह की बात, मिस्ला मानिंद क़ौलिहिम इसी तरह की बात, तशाबहत एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम उनके दिल। यानी अब ये तीनों ग्रोह जो हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इनके दिल एक तरह के हो गए, क्योंकि एक जैसी बातें कर रहे हैं तो फिर दिल भी एक तरह के हो गए हैं। कद तहकीक बय्यनल आयाती बयान की हमने निशानियां, लिकौमी युकिनून उन लोगों के लिए जो कि यकीन रखते हैं, लिकौमिन कौम के लिए, युकिनून जो यकीन रखती है। इन्ना बेशक हमने अरसलना का भेजा हमने आपको बिलहक की हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नजीरा और डराने वाला। वला तुसअलु और ना अब सवाल किए जाएंगे, अन अस्हाबिल जहीम दोज़हियों के बारे में। यानी इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ और सिर्फ हक को पहुंचा देना है, हक की खुशखबरी दे देना है, और इसी तरह अजाबों से डरा देना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लोग आपके ऊपर ईमान क्यों नहीं लेके आए, लोग मोमिन क्यों नहीं हुए, लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए। आपने सिर्फ अपना काम करना है। आपसे सिर्फ इसी का पूछा जाएगा जो जहन्नुम में अपनी मर्जी से चले जाएंगे, उनसे उनके मुतल्लिक आपसे पूछा नहीं जाएगा। यही आजकल हमारा भी यही काम है कि हमने क्या करना है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया,
ہم نے جو ہمیں چیز کا پتا ہے وہ بتا دینا مقصد ہے. اب اس سے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے, ہمارا تو مقصد صرف جو ہے وہ بات کو پہنچا دینا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا نا, قد بین الآیات لقوم یوقنون, تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں قوم یقین کرنے والی کے لیے, اور انہی نشانیوں میں سے کیا بتایا, انا ارسلناک, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کی سچ کے ساتھ, بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرا اور ڈرانے والا. تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات موجود تھیں, بیان کر دی گئی تھیں. مثلا جیسا کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے عطار بن یسار سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر صفات بیان کی, تو وہ کیا ہیں؟ تورات میں بھی آپ کے وہی اوصاف مذکور ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد, مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ امی لوگوں کی جائے پناہ ہیں, آپ میرے بندے اور رسول ہیں, میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ بدخو ہیں, نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والے, اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے, بلکہ عفو دروزر سے کام لینے والے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ تیری قوم کو آپ کی وجہ سے بالکل سیدھا اور درست نہیں فرما دیتا, اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگ جائیں. اس سے اللہ تعالیٰ ان کی اندھی آنکھوں, بہرے کانوں اور پردوں میں ملفوف دلوں کو کھول دے گا اس کلمے کے ساتھ. تو یہی کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ کیا کرنا تھا, ہدایت انہی کو ملنی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینی تھی. وَلَن تَرْضَىٰ, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے, ان کل یہود, وہ آپ سے یہود, وَلَن نَصَارَىٰ, اور نہ نصارہ, حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا پیروی کر لیں آپ ملتہم, ان کے دین کی, ان کے طریقے کی. قل کہہ دیجئے, ان بے شک خدا اللہ, اللہ کی ہدایت, هو الہدی, وہ ہی سچی ہدایت ہے. جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہ ہی سچی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, اور اگر آپ پیروی کریں, اَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی, بَعْدَ الَّذِي, اس چیز کے بعد, جَاءَکَ, آئی آپ کے پاس, مِنَ الْعِلْمِ, علم سے. اچھا, اس آیت کے اندر نا سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض فرض کر لیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. اس آیت کے اندر اگرچہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, مگر سمجھایا امت کو گیا ہے, کیونکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کر نہیں سکتے تھے, تو یہ سمجھایا امت کو گیا ہے. احواء, ہوا یعنی خواہشات ہیں, خواہش کی جمع. اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, یعنی قرآن و سنت ہے. ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں, جو کہ آج کل مختلف چیزوں میں پڑ گئے, قرآن و سنت کو چھوڑ دیا, بدعت کو اختیار کر لیا. بدعت بھی یہ اپنی ایک خواہش کی چیز ہے, کیونکہ بدعت کا کیا کہتے ہیں جی, یہ بدعت حسنہ ہے, یہ بدعت فلاں ہے. بدعت کا مطلب ہی یہی ہے, وہ بدی ہم نے دیکھا نا, بدعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنائی گئی چیز, ٹھیک ہے, بنائی گئی چیز, چاہے وہ اس کو کتنا مرضی کہہ لیں یہ بدعت حسنہ ہے جی, اچھی چیز ہے. ویسے تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے, نظریہ ہی غلط ہے, نعوذ باللہ. یہ کون سی ایسی اچھی چیز آ گئی کہ اچھے کا پیغام دینے والے کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں خواہشات پہ مبنی ہیں, تو خواہشات جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے. بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ گئی. ان بے شک خدا اللہ, اللہ کی ہدایت, هو الہدی,
वही सच्ची हिदायत है। वला इन इत्तबाता, और अगर आप पैरवी करेंगे अहवाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी, उस चीज के बाद, जा का आ गई आपके पास, मिनल इल्मी, इल्म से, यानी अगर हमारे पास भी, हमें भी जिस चीज के इल्म का पता चल जाए, जिस चीज के मुतल्लक कुरान और सुन्नत के अहकाम का पता चल जाए, फिर भी हम दुनिया के तरीके के ऊपर उसको लेकर चलेंगे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती के ऊपर हैं। तो हमें इसको इख्तियार नहीं करना चाहिए, और अगर जो कोई इसको इख्तियार करेगा तो उसके लिए फिर क्या होगा, हलाकत ही हलाकत है। माला का क्या है आपके लिए, नहीं है आपके लिए, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह से बचाने वाला, में वलीयन, कोई भी दोस्त, वला नसीर, और ना कोई मददगार। यानी फिर तो हलाकत में पड़ जाएंगे ना, जब अपनी ख्वाहिशों पे अमल करना शुरू कर देंगे, अपनी ख्वाहिशों की पैरवी शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर अल्लाह का अजाब आएगा। तो अल्लाह के अजाब से कौन है, कौन दोस्त है जो बचा सकेगा, या अल्लाह के अजाब के खिलाफ कौन है जो हमारी मदद कर सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सख्त वईद फरमाई है। ये सख्त वईद जाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, लेकिन ये हमारे लिए है कि हम इससे बचें और ऐसे काम ना करें। तो ठीक है, हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।